ये कल हमने देखा था एग्जाम्पल 9.10. So if you compare 1 and 2, राइट, 1 and 2 के लिए क्या, फर्स्ट स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, विल इट बी हाई और लो? आपको लोग समझा था कि नहीं समझा था? कल बताया था मैंने, नहीं समझा तो पूछो, आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. इफ यू अंडरस्टैंड बोला क्या दीक्षिता? So low temperature. यस, लो टेम्परेचर चाहिए बिकॉज वी वांट एस इज डिजायर्ड, तो वी नीड टू हैव मोर ऑफ आर. आर ज़्यादा चाहिए, तो E1 का ज़्यादा है, तो यू नीड टू हैव लो टेम्परेचर, राइट. सो व्हेन यू गो फ्रॉम आर टू एस एंड टी, 3 and 4 कंपेयर करने का अपने को, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? व्हाट शुड बी टेम्परेचर हियर? कितने लोग को नहीं समझा ये? लेट मी आस्क, रेज योर हैंड्स जिसको नहीं समझा इफेक्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑन प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. रेज योर हैंड्स इफ यू नॉट अंडरस्टूड. सबको समझ आया? गुड, अच्छी बात है, सबको समझ में आया तो ठीक है. फिर 3 and 4 में क्या लेना पड़ेगा हमारे को टू गेट मैक्सिमम एस? यू कैन टेल. श्लोक. सो रहा है. धैर्य पटेल. Yes, sir. और गेटिंग मैक्सिमम एस बिटवीन आर 3 and 4, रिएक्शन नंबर 3 and 4, आर से एस जा रहा है या बी जा रहा है, तो कौन सा टेम्परेचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, हाई हाई की लो? High temperature, sir. क्या? High temperature. High temperature, because activation energy of 3 is more than that of 4, so the sensitivity of 3 is more than that of 4, तो ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 3 का रिएक्शन ज़्यादा होगा और 4 का रिएक्शन कम होगा. So once we reach S, we want to minimize this 5 and 6, right? So if you look at 5 and 6, this is more than this compared to this, right? तो क्या करना पड़ेगा बाद में to minimize T and W? What kind of temperature should we keep? Again. Low temperature. So essentially it is going to be like this: initially low, then high, and then low. Initially low रहेगा तो ज़्यादा S R फॉर्म होगा, then you want more S, so high temperature, then again थोड़ा S फॉर्म होने के बाद again you have to reduce because you want to minimize T and W. समझ में आया लोगों को ये? So this is what is this called? Increasing progression, right? क्या बोला था हमने टर्म? बराबर, कहीं तो दिया था ना. Rising progression or increasing progression, and this is falling progression.
ठीक है, इज दैट क्लियर? सो इट्स नॉट जस्ट दिस, इट्स बेसिकली लो है फिर हाई ले रहे हैं, हाई है फिर लो ले रहे हैं यहाँ पर. So it is not one temperature, it is changing temperature. One is increasing, one is decreasing. So increasing and decreasing. Any questions on this problem? ठीक है, question here. Let's move on to second problem. In this case, we have S is desired product. और यहाँ पर K का values दिया हुआ है. There are two mixed flow reactors in series. Right? So you have two reactors in series. So it will be and between 10 to 90 degrees. So it can be, temperature can be 10 degrees or 90 degrees, between 10 and 90 degrees centigrade. The reactors have to may be kept at different temperatures. What should these temperatures be for maximum yield of S? Find this fractional yield. Okay. So what we have to do is now, then we use both the terms, find K1, K2, K3, K4 at 10 degrees centigrade and 90 degrees centigrade. ये आपको करना है अभी. राइट, इक्वेशन दिया है यहाँ पर, टेम्परेचर डालो, फाइंड आउट K1 at 10 degrees and 90 degrees, K2 at 10 and 90, K3 at 10 and 90 and K4 at 10 and 90. करो, फटाफट करो. Then I'll tell you what to do. Next step. समझ में आया? दो टेम्परेचर पे हमारे को इनका K का वैल्यू निकालने का है, ऑल 4 K वैल्यूज. करो फटाफट. Hello. Hello. या सर at 10 डिग्री सेल्सियस वैल्यू में असाइनमेंट था इसलिए सर वैल्यू बताता हूँ. क्या बोल रहे हैं? सर वैल्यू निकालिए सर बताता हूँ. ओके ठीक है, बताओ. K1, at 10 K3 and K4 at 10 degrees centigrade and 90 degrees centigrade. What is the value of K1 at 10 degrees? 10 degree 0.799. 6199. Okay. It to 7.72. 7.27. K3 15.43 into 10 to the power minus 7. Okay. K4. K4 3.84 into 10 to the power 7. Okay. 90 degrees पे. And Okay. K2. K3. 0.0044. ठीक है. So you have these values of K1, K2, K3, K4 at 10 degrees and 90 degrees. Now what we need to do is we have to compare these things. जैसे first reaction में हमारे को desired S है, that means we want more of this reaction than this reaction. Right? So we compare K1 and K2. K1 and K2 compare किया हमने. So that means we have to take K1 by K2 at 10 degrees and 90 degrees.
at 10 degrees K1 by K2 is and at 90 degrees क्या मिलेगा वैल्यूज? सर पहला मिलेगा 0.08526, और सेकंड वाला सेकंड वाला 0.391625. 0.39, right? So what should be temperature in the for the first reaction? High temperature 90 degrees Celsius. Right? Because we want more of first reaction, right? And less of second reaction. यहाँ पर जो ratio कम है, this is very low, this is very high, so we have to select this temperature. हेलो सर. Yeah. सर हम एक्टिवेशन एनर्जी को देके भी कर सकते हैं ना, ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, because he wants actual yields, right? Maximum yield, find this fractional yield also. इसको qualitative नहीं है, ये quantitative है. ओके. और टेम्परेचर कौन सा यूज करना वो तो देख सकते हैं ना एक्टिवेशन एनर्जी से, फिर देख वो सकते टर्म. हैं, बट क्या है ना, सी यू कैन डू दैट डेफिनेटली, नथिंग रॉन्ग विद दैट. क्वालिटेटिव जो हम बोला था कर सकते हैं, वो किया तो क्या होगा, इफ यू कंपेयर दिस एंड दिस, ओके, तो यहाँ क्या आएगा, हाई टेम्परेचर चाहिए, बराबर. हाँ सर, सिर्फ वही कंक्लूड कर सकते हैं हम अरे एक्टिवेशन यू एनर्जी. कैन कंक्लूड ओनली दिस, हाई या लो, हाँ राइट. ये. दूसरा फिर अगर इफ यू कंपेयर आर एंड एस, राइट, K3 एंड K4, तो क्या चाहिए अपने को, 3 ज़्यादा चाहिए, तो क्या चाहिए अपने को यहाँ, लो टेम्परेचर, बराबर. हाई में अपना 90 डिग्रीज है, वी कैन टेक 90 डिग्रीज, हियर वी कैन टेक 10 डिग्रीज. ये कंक्लूजन निकाल सकते हो. हाँ ओके सर. Right, you can do that, no problem. But you असाइनमेंट. cannot, but you cannot find out what is the yield. यस यस. Right? इसीलिए मैंने K कैलकुलेट करने के लिए बोला. क्वालिटी आया तो ये इतना K काफ़ी है. Essentially क्या हो जाएगा? It will be, if you look at qualitatively, it will be like temperature versus time लिया, तो it will be like this, right? बराबर. पहले हाई है, बाद में लो है. So it is going to be a falling progression. बराबर है. यस सर. राइट. सो इसेंशियली ये ठीक है, बट अभी क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी दिस टेम्परेचर्स फॉर मैक्सिमम यील्ड. ये ठीक है, व्हाट फाइंड दिस फ्रैक्शनल यील्ड भी निकालने का हमारे को, इसीलिए ये करना पड़ेगा हमारे K1 K2 का वैल्यूज. अदरवाइज टेम्परेचर चाहिए तो फिर से हो गया, इतना इतना ईजिली कर सकते हैं, बट वी नीड टू फाइंड द यील्ड ऑल्सो, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने ये रेशियो भी ले लिया. एक्चुअली यू कैन सी दिस ऑल्सो, राइट. फिर K3 और K4 लिया, तो लेट्स डू दैट ऑल्सो. K3 एंड K4 at 10 degrees centigrade and सर एट 10 आता है 4.02. K3 by K4 15.4 into 10 to the power of -7 divided by 0.0017, बराबर. हाँ नहीं सर. नहीं नहीं, नहीं 3.84, 4.02. 4.02, और ये आएगा 0.0017 अपॉन 0.0044. 0.3863. सो दैट मीन्स यू नीड टू सेलेक्ट दिस टेम्परेचर, बराबर. वही सेम कंक्लूजन उधर भी आया हमारा, बराबर. जो ऊपर आया हमारा कि पहले हाई टेम्परेचर चाहिए 90 डिग्रीज और बाद में लो चाहिए. दैट सेम कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम कंपेयरिंग K1 K2 एंड K3 K4 ऑल्सो. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड यील्ड. यील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड साई, राइट. साई ऑफ R बाय लिया तो राइट क्या आएगा,
if we take, because we want to find yield, right? So psi g अपने को, and we assume first order reaction, psi of R by is dCr by minus dCA, तो क्या हो जाएगा ये, CR formed upon CR formed प्लस CT formed, ठीक है। जितना R फॉर्म हुआ इज R, ये रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट इज हाउ मच R फॉर्म, तो जितना ये रिएक्ट होगा उतना ही R और T फॉर्म होगा, ठीक है। CR अपॉन CR प्लस CT। हेलो सर, या सर हम डायरेक्ट रेट्स लिख सकते हैं ना? ठीक है, रेट्स लिखेंगे, ठीक है। नोट राइट रेट्स, क्या आएगा, K1 CA CA, राइट, K1 CA अपॉन K1 CA प्लस K2 C, ठीक है। तो CA कैंसिल हो जाएगा, इजी K1 पड़ेगा। CA प्लस K2 CA, तो CA CA कैंसिल हो गया, तो व्हाट यू गेट इज K1 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। So what we can do is we can find this at 10 degrees centigrade and at 90 की जरूरत नहीं है, 10 पे करना है, बिकॉज अपना फर्स्ट टेम्परेचर 90 डिग्रीज है, राइट। क्या हो जाएगा ये वैल्यू, दिस फर्स्ट टेम्परेचर इज हाई, राइट, तो K1 एंड K2, K1 is 66.3, ठीक है। तो कितना आएगा ये, सर 0.28। वेट, ओके, ये हो गया अपना R का। नाउ व्हाट यू नीड टू डू सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन में क्या आ जाएगा अपने को, साई ऑफ सेकंड रिएक्शन में S बाय R, ठीक है। So it is K3 into CR बराबर K3 into CR upon K3 into CR plus K4 into CR, ठीक है। तो CR कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट इज K3 upon K3 plus K4, and this we want to do at 10 degrees centigrade पर, because the temperature is low, so 15.4 and 3.84, right। क्या आएगा ये रेशियो, 0.8। अभी क्या निकालने का अपने को, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, what should this temperature be for maximum fractional yield of S? When you talk about S, it's always related to A. Yield is always for A, right? So what we need is essentially psi of S by A, ठीक है। So S by A के लिए what you can do is you can take psi of S by R into psi of R by A, ये होता है because this is nothing but dCs1 minus dCr into dCr upon minus dCA, बराबर। So this will give us dCs upon minus dCA, ठीक है। So S बार अपने पास है 0.80 एंड R बाई भी अपने पास है 0.28, तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ S, 0.224।
दैट्स अ फ्रैक्शनल यील्ड ऑफ एस, सॉरी। ठीक है, समझ में आया? Any questions, doubts on this problem? Simple है, ज़्यादा कुछ complicated नहीं है. Only thing you have to understand is you can have this you can use. सो मतलब यहाँ मैक्सिमम यील्ड इतना ही आता है क्या? मैक्सिमम 20 नहीं आएगा बिकॉज ये यहाँ पर बहुत कम है ना. सी दिस इज वेरी लो. फर्स्ट रिएक्शन का बहुत लो है, बराबर. व्हाट वी गॉट वाज कहाँ गया, 0.28 इज वेरी लो बिकॉज दैट के वैल्यूज आर वेरी क्लोज, नॉट वेरी डिफरेंट, राइट. 63 163, यहाँ पर 0.8 है. सो इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, राइट. इनिशियली फर्स्ट रिएक्शन में सिर्फ 28% यील्ड आया आर का, उसका 80% एस में जाएगा. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? एंड दैट इज व्हाई सीरीज रिएक्शंस जो रहते हैं, सीरीज पैरेलल रिएक्शंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स. इसमें यील्ड कम होते जाता है. जितना साइड रिएक्शन रहेगा, जितना पैरेलल रिएक्शन रहेगा, उतना यील्ड कम होते जाएगा. सिंगल रिएक्शन इज ऑलवेज बेटर. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? तो और असाइनमेंट में सब आ रहा है आपका. आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम असाइनमेंट क्वेश्चंस में, बराबर. वो आपका 3 वाला मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस आ रहा है बराबर. इंटरसेक्शन 3 पॉइंट वैभव. यस. Okay, ठीक है. So we'll stop here for unit 3 now. Let's start unit 4. अभी sorry, unit 5 complete है, unit 6 चालू करेंगे अभी. And unit 6 को काफी टाइम. सर या सर आप वो ये भी बताने वाले थे, वो रिवर्सेबल के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी. हाँ, रिवर्सिबल के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंस. ठीक है, हो गया ये वाला क्या. हाँ यही वाला. तो ये जो है, ये दिस इज योर मटेरियल बैलेंस लाइन, दिस इज एनर्जी बैलेंस लाइन, दिस इज योर पोर्शन. ये जो रिवर्सिबल में यहाँ पर आ जाता है, ये कर आ जाता है मटेरियल बैलेंस लाइन. मटेरियल बैलेंस ऐसे जाके यूँ वापस आता है बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम कन्वर्शन एक्स से ई. सो दैट्स ऑल यू कैन गेट. यहाँ पर जो रहेगा एनर्जी बैलेंस करेंगे तो आपका ये जो टेम्परेचर रहेगा इट विल डिपेंड ऑन एनर्जी बैलेंस कैसे कर रहेगा. अकॉर्डिंगली यू गेट द कन्वर्शन. रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है कन्वर्जन कम होते जाता है, इक्विलिब्रियम कन्वर्शन कम होते जाता है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये जो है ना, दिस यू शुड अंडरस्टैंड. रिवर्सिबल में इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कन्वर्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. और फिर मटेरियल बैलेंस इक्वेशन जो रहेगा, एक्चुअली जो रहेगा प्लॉट विल कम समथिंग लाइक दिस. ये जो ऐसा है यहाँ पर ऐसे बताया है, बट आई एम श्योर ये ऐसा नहीं आएगा बिकॉज क्लियर कभी नहीं आएगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस एक्चुअल कर पैरेलल टू द अपना इक्विलिब्रियम कन्वर्शन. ठीक है रितेश. सर वो रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं सर? मैं वही बोलता हूँ कि दिस इज योर इक्विलिब्रियम कन्वर्शन, बट एक्चुअल जो रहेगा मटेरियल बैलेंस यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से कहीं से आएगा. इट विल बी समवेयर लाइक दिस. इफ यू एक्चुअली ड्रॉ द मटेरियल बैलेंस इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ओके सर. So it's okay, that's the maximum you can get. उससे कम ही आने वाला है. ये बोल रहा है एनर्जी बैलेंस ऐसे रखा तो टेम्परेचर इज टू हाई, कन्वर्जन इज लोअर. जैसे जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में उतना कन्वर्जन कम होता जाएगा बिकॉज दिस इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन चालू हो रहा है यहाँ पर. देन द कन्वर्शन इज डिक्रीजिंग.
यहाँ पर एसेंशियली और फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर आपका बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट टेम्परेचर शुड बी, इसलिए निकालते हैं ना मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इफ यू एक्सीड द टेम्परेचर रिवर्सिबल रिएक्शन में, द रिवर्स रिएक्शन विल dominate over the forward reaction. Nobody operates in this region. We always operate in this region. यहाँ पर मैक्सिमम कन्वर्शन जाएगा। इसीलिए ज़्यादा कवर नहीं किया मैंने, बिकॉज nobody will operate in this region. That's why these 3 points are important. इससे ज़्यादा कोई आगे जाएगा नहीं टेम्परेचर में। ठीक है। यस सर। इसलिए ज़्यादा कवर नहीं किया, बिकॉज इट्स बेसिकली थियोरेटिकल इंटरेस्ट है। यहाँ पर nobody will operate in this region. Operation is always in this region. ठीक है। So let's go to unit 6 now. So far we have looked at ideal flows. जितना भी किया हमने, जितना भी यूनिट 1 2 3 4 5 किया, we always considered ideal batch reactor, ideal plug flow reactor, ideal mixed flow reactor, right? So batch reactor में what we do is we assume uniform temperature and concentration in the entire reaction mixture, right? कहीं भी सैंपल लिया आपने, ऊपर में लिया, नीचे में लिया, कहीं भी लिया, तो सेम टेम्परेचर एंड सेम कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए। सेम थिंग फॉर CSTR. That's the assumption. And for PFR, we say that no lateral mixing. Right? That means if you look at that means this layer of liquid does not mix with this layer of liquid. There is no mixing between the different layers of liquid or reaction mixture. So there is no lateral mixing. ये complete mixing है, perfect mixing. ये perfect mixing है, यहाँ पर no mixing है. Understand difference between CSTR and PFR and batch reactor. Ideal. Okay. So 3 factors make up the contacting or flow pattern. Reference time distribution देखेंगे क्या है, what is RTD. Then state of segregation of fluids, that is its tendency to clump or form a group of molecules to move together. It does not move as a molecule, single molecule. It will move as number of molecules together. And earliness and lateness of mixing. Mixing कितना जल्दी होता है, कितना लेट होता है. बैच रिएक्टर में अर्ली मिक्सिंग चाहिए, CSTR में अर्ली मिक्सिंग चाहिए, PFR में नो मिक्सिंग चाहिए हमारे को. So these 3 factors will affect the actual operation of the reactor. Okay. So let's look at distance time distribution. So this is used to study deviations from ideal ideal flow patterns, CSTR or PFR, caused by channeling of fluid, recycling of fluid, or creation of stagnant regions. So channeling, recycling, stagnant regions in the reactor. We'll see that. So if you look at this diagram, यहाँ पर जो रहेगा, there is no mixing. यहाँ पर मिक्सिंग नहीं है, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं है. So these are all stagnant regions. यहाँ पर एक बार लिक्विड आ गया तो फंस जाता है, doesn't come out of it. ये बाकी सब ऐसा मिक्स होकर इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसा मिक्स जा रहा है, राइट. बट ऑल दीज थिंग्स इन दिस रीजन, पॉकेट्स, कॉर्नर्स जो रहता है, यहाँ पर फंस जाता है लिक्विड. these are all stagnant regions. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इतना चेंज नहीं हुआ, राइट. देन शॉर्ट सर्किटिंग इज, अगर ये CSTR है मेरा, यहाँ से आ रहा है लिक्विड फ्लो इन, एक्चुअली इट शुड गो हियर, mix and then come back here. That's the purpose of this impeller. जो impeller है ये mixer जो बोलते हैं, stirrer जो बोलते हैं. Purpose of the stirrer is to mix the liquid so that there is perfect mixing. But what happens many times, the liquid will come from here and it will go back here, go out from here. ऊपर को ऊपर निकल जाएगा. That is called short circuiting. So it will not spend enough time in the reactor. यहाँ पर जो liquid आएगा, it will spend more time in the reactor. That means there is more time in the reactor for the reaction to take place for these pockets of fluid than for this fluid. And so this is CSTR. This is also kind of CSTR.
इज अ पैक्ड बेड। पैक्ड बेड रिएक्टर लिया तो चैनलिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ से लिक्विड आ रहा है एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस इट इज एक्चुअली शॉर्ट सर्किटिंग, कहीं से शॉर्ट सर्किट करके निकल गया बाहर यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो रहेगा, जो है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस रूट इट इज डायरेक्टली गोइंग थ्रू दिस, जो रिएक्शन रहेगा यहाँ पर रहेगा, जैसे कैटलिस्ट यहाँ पर है तो रिएक्शन जो होगा कैटलिस्ट सरफेस पर होगा बट इट कम्स हियर एंड डायरेक्टली गोज आउट, सो इट डज नॉट स्पेंड इनफ टाइम with the catalyst for the reaction to occur. So this is all kind of non-idealities which can happen, right? So channeling, recycling essentially यहाँ पर आके सपोज यहाँ पर आया और फिर बाद में यहाँ से फिर से वापस इधर आ गया, instead of going out recycle हो गया। Stagnant region. So we have seen this thing: short circuiting, stagnant region, and recycling. So these are the main three causes of non-ideality because it deviates from the ideal flow pattern which is required for CSTR or plug flow reactor. This is actually PFR, this CSTR. ठीक है, समझ में आया why there is a deviation from ideal flow pattern? This could be a MCQ question. Okay, if there are no questions, let's move. So if you have a complete velocity distribution map of the fluid, that means velocity क्या है, each molecule, each particle in the fluid, then we can predict the behavior of the reactor. तो उसमें क्या पता चलेगा कि कहाँ मिक्सिंग हो रहा है, कहाँ रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पर मॉलिक्यूल ए है, कहाँ मॉलिक्यूल बी है, कहाँ मिक्सिंग हो रहा है, कहाँ कॉन्टैक्टिंग हो रहा है. दैट कैन बी डन. नीड टू नो हाउ लॉन्ग द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स स्टे इन द रिएक्टर, राइट. जैसे अभी देखा हमने शॉर्ट सर्किटिंग में टाइम विल बी लेस, राइट, लेस टाइम. रिएक्टर में कम टाइम स्पेंड करके बाहर निकल गया, यहाँ पर मोर टाइम, but it's not able to get out there. So time will keep changing. Time spent by each molecule in the reactor will keep changing depending on where it is, how it is flowing. Similarly इधर भी शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो टाइम कम हो जाएगा और इधर भी टाइम कम हो जाएगा, और कहीं फंस गया, अटक गया तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा. So that is why we need to do what is complete molecules का time spent in the reactor. So distribution of residence times of the fluid, that is called residence time distribution. RTD is essentially residence time distribution. That means how much percentage, it's not each individual molecule, what percentage of the feed spends how much time in the reactor. हमने जो निकाला था what we found out in our batch reactor वगैरह, we found three things, right? We found time of the batch reactor, tau of mixed flow, and tau of PFR, right? So what was tau for CSTR and PFR? Definition याद है किसी को? V by V. डेफिनेशन क्या है? टाउ रेफरेंस टाइम का डेफिनेशन क्या था? याद किसी को? It is the amount of time required to treat one reactor feed. One reactor volume. How much time a reactor volume spends in the reactor? So if I say if the tau is okay, say 2 minutes or 5 minutes, that means जितना भी रिएक्टर है उसको कंप्लीट भर दिया इनलेट से आउटलेट तक, इट टेक 2 minutes फॉर द मॉलिक्यूल्स टू गो फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट और 5 minutes to go from inlet to outlet. That's what it means. And here when you say tau equal to, we are assuming it is same for all the molecules, right? That means we are assuming same tau for all molecules, right? That's why we have only one value in our
कैलकुलेशंस PFR CSTR में हम कैलकुलेट करते हैं टाउ, right? From there we find out volume of the reactor if you know the volumetric flow rate. But actually time is not constant for all the molecules, and that is why we have to study resistance time distribution. That means how much percentage spends 2 minutes, how much percentage spends less than 2 minutes, how much percentage spends more than 2 minutes, and that is what we are going to do in this, right? And that is why we do this stimulus response experiment. We'll see that what is stimulus response. But actually RTD is resistance time distribution. That means what fraction of the molecules spend, जैसे tau देगा 2 minutes, there's a fraction which will spend less than 2 minutes. अगर short circuiting होगा तो less than 2 minutes रहेगा. It will vary from 0 to 2 minutes and 2 minutes to maybe 5 minutes, right? So we have to see, find out कि between 0 to 5 minutes अगर total है, अगर पूरा reactor volume को बाहर आने को 5 minutes लगता है in non-ideal conditions, so what percentage of that molecule spend 1 minute, what percent spends 2 minutes, how much percentage spends 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, and that is what is residence time distribution. समझा क्या RTD? Okay, so then next one was what we saw, that this is a 3 factor, right? One was residence time distribution, second was state of aggregation, and third was earliness or lateness. So state of aggregation is, it can go as a microfluid, individual molecules are flowing through it freely, or clumps are flowing through it, right? So maybe 5-10 molecules combined together into one lump or clump, and they flow as a bigger molecule, bigger set of particles through it. So इसमें reaction faster रहेगा. This is the ideal condition. This is a non-ideal condition. जो हमने टाउ निकाला ऊपर CSTR में, that is for ideal conditions, microfluids. Each individual molecule is flowing as on its own. It's not combining together to form a lump or clump or an aggregate of molecules and flowing as an aggregate of molecules. ठीक है? So two states of aggregation of fluid, macro and micro, right? This is the macro fluid. गैस को जो है लम्प्स बन गया, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स, बड़ा बड़ा गैस बबल्स होता है. when you bubble the gas through a liquid, तो कोलेस होके बड़ा बड़ा हो जाता है, क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा बबल्स हो जाता है. So that is a macro. Whereas liquid, you can say if it is very high, very well stirred or mixed, it is a microfluid. This Sparger reactor है, बबल कॉलम रिएक्टर है ये. एंड देन स्प्रे टावर लिया, तो उसमें ऊपर से स्प्रे किया, यहाँ पर गैस नीचे से आ रहा है, तो जो लिक्विड आ रहा है यहाँ पर, ये भी they'll combine together become bigger things than gases is usually, because it is going through not, ये क्या लिक्विड है, राइट? तो लिक्विड में इजीली कोलेस हो जाता है गैस बबल्स एंड जो भी मैक्रोफ्लूइड्स. यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर गैसेस माइक्रो एंड लिक्विड लम्प्स बन के नीचे आता है. So it can be, gas can be micro or liquid can be micro, or other way around. So this is our state of aggregation. That means, is it flowing through as a set of molecules, individual molecules, or aggregating, combining, and becoming bigger, or rather number of molecules flowing together as one element or entity. ठीक है, समझ में आया state of aggregation. And third one was earliness or lateness of mixing. So if you look at this, यहाँ पर जो molecules आया, यहाँ पर mixing हो रहा है, early mixing हो रहा है, तो यहाँ पर flat velocity profile हो रहा है. क्योंकि बेसिकली यहाँ पर fluid mixing हो रहा है, स्टेरॉइड डाला है यहाँ पर, बताया यहाँ पर, तो it will flow as uniform profile. और यहाँ पर uniform mixing रहेगा throughout, तो ऐसे जाएगा. लेट मिक्सिंग रहा, यानी इनिशियल मिक्सिंग नहीं आया, यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर आकर रिएक्ट होगा. सो मिक्सिंग इज रिक्वायर्ड फॉर मॉलिक्यूल्स टू कम टुगेदर एंड कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर एंड देन रिएक्ट, राइट?
जैसे यहाँ पर अर्ली मिक्सिंग है, यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है एट एंट्री, सो एंड वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू रिएक्शन फॉर रिएक्शन, यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है। अगर यहाँ पर जो है सेपरेट आ रहा है, राइट, ए एंड बी का मिक्सिंग नहीं हो रहा है, देयर इज नो मिक्सिंग हियर, अनएबल टू रिएक्ट। और यहाँ पर जो रहेगा ओनली यहाँ पर थोड़ा मिक्सिंग होगा और यहाँ पर रिएक्ट होगा। So it depends on where the mixing is happening. अगर अर्ली मिक्सिंग हो रहा है तो रिएक्शन अच्छा हो जाएगा, अगर लेट मिक्सिंग हो तो रिएक्शन अच्छा नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। Any questions on these three factors? We will not study too much about early late mixing, ज़्यादा नहीं करेंगे, we study mainly RTD। ये सब ये आपको अवेयरनेस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, MCQ आ सकता है सेग्रीगेशन और इस पर, बट मेनली विल फोकस ऑन RTD एक्सपेरिमेंट because that is हेलो quite सर। yeah। सर तो अर्ली और लेट मिक्सिंग है ना, तो उसमें इंडस्ट्री में अर्ली मिक्सिंग का देखते हैं क्या कि कर्व फीड भेजे तो अर्ली मिक्सिंग हो जाएगा? That's why you have to have good mixing at the early part, ये अवॉइड कर सकते हैं, राइट। that's why you understand this, जितना जितना अर्ली मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना लेट मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा नहीं रहेगा, राइट। ये अगर CST आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है और मिक्सिंग बराबर नहीं हो रहा है इनिशियल पार्ट में, तो रिएक्शन कम हो जाएगा। So you have to make sure that we have good enough stirring at the early part. As soon as the liquid comes in, it should mix in properly and then the reaction will properly take place. अगर लेट हो गया मिक्सिंग, बराबर नहीं हुआ मिक्सिंग, तो रिएक्शन नहीं होगा। सर तो फिर PFR में मिक्सिंग कैसे करें? PFR में मिक्सिंग की जरूरत नहीं रहती है, मैं पहले बोला था, ये आपका ये पहले यहाँ बताया मैंने, there's no mixing required in PFR. It's only in CSTR where mixing is required. ये जो बताया है ये CSTR ही बताया है, ये CSTR। हेलो सर। या PFR में लेटरल मिक्सिंग जीरो होता है ना? लेटरल मिक्सिंग होगा तो नॉन एडिटिव होगा उसमें, अंडरस्टैंड। हाँ ओके। यहाँ पर मिक्सिंग चाहिए परफेक्ट, मिक्सिंग नहीं हुआ तो नॉन एडिटिव हो जाएगा। यहाँ पर मिक्सिंग नहीं चाहिए, अगर मिक्सिंग हो गया तो नॉन एडिटिव हो जाएगा। ओके, पर सर रेडियल मिक्सिंग तो होगा ना आइडियल कंडीशन में भी? रेडियल मिक्सिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेटरल मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये व्हाट आवर assumption इज दैट दिस concentration throughout this radius is same, this concentration is same throughout this radius, that is not important because it's same concentration। ये CA1 लिया हमने, CA2 लिया, concentration is more, but CA1 CA2 should not mix। ओके ओके, वो आइडियल कंडीशन है, वो मिक्स नहीं होना चाहिए। लेट इसलिए लैटरल बोला है यहाँ पर, रेडियल नहीं बोला। लैटरल मिक्सिंग नो प्रॉब्लम, रेडियल मिक्सिंग नो प्रॉब्लम, लैटरल मिक्सिंग प्रॉब्लम। ठीक है। सर तो ये अवॉइड कैसे करते हैं लेटरल मिक्सिंग PFR में? PFR में सर लेटरल मिक्सिंग अवॉइड कैसे करते हैं? कैसे करते PFR में? सर अवॉइड क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मिक्सिंग हो रहा है तो ज्यादा होगा ना रिएक्शन। अगर लेटरल मिक्सिंग हो रहा है तो रिएक्शन ज्यादा होगा, तो अवॉइड क्यों करेंगे? नॉन आइडियलिटी से बढ़ सकते हैं रिएक्शन। ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों का, you forget what is written in unit 1 and unit 2, unit 2 and unit 3, right? प्रॉब्लम यही है, because you forget when you go to unit 6, you forget what you did in unit 2, unit 3, बराबर ना? Concentration profile is this in a PFR। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जितना है यहाँ पर, ये कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ये कॉन्सेंट्रेशन इतना है, अगर इन दोनों का मिक्सिंग होगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाए तो कन्वर्जन बढ़ेगा कम होगा? कम होगा सर। एक से कम होगा सर। कन्वर्जन, दैट इज
there should be no mixing in PFR. Yes, sir. समझा ना? Why we don't want mixing in PFR and why we want mixing in CSTR? ये आपका बेसिक यूनिट 3 का है. Is it clear? Yes, sir. Crystal clear. है. Then we'll go to RTD studies, right? सर वो मेरा क्वेश्चन सर बोलो. सर अवॉइड कैसे करेंगे वहाँ पे? PFR को हाँ पीएफआर में लेटरल मिक्सिंग डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए PFR में. PFR इज जनरली स्ट्रेट ट्यूब्स. PFR बोला तो इसे स्ट्रेट ट्यूब जैसे हीट एक्सचेंजर रहता है, डबल बाइट एक्सचेंजर, राइट? इनर ट्यूब लिया, स्ट्रेट ट्यूब रहेगा, उसमें कुछ प्रोट्रूजन नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो मिक्सिंग नहीं होगा एज फार एज पॉसिबल. आ गया तो मिक्सिंग चालू हो जाएगा. मतलब सर ये पूरा फ्लो रेट पे डिपेंड करेगा. पे डिपेंड करेगा, राइट? टर्बुलेंट फ्लो रहेगा तो मिक्सिंग हो जाएगा. हाँ यस सर. फंक्शन ऑफ फ्लो रेट, एंड दैट इज वाई जो RTD स्टडी रहता है, पहले इतना नहीं होता था, बट आजकल आपको पता होगा CFD, राइट? ये पता है आपको? हाँ यस. CFD में you can actually study the whole temperature profile and concentration profile, everything. तो पूरा स्ट्रीमलाइन बना देता है, राइट? CA नॉट रहेगा सपोज, so it will have streamlines. कहाँ से क्या टेम्परेचर concentration जा रहा है, टेम्परेचर जा रहा है, you can draw the whole streamlines in the whole reactor, and then you can see study कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से ये चेंज हो रहा है. then you can change the reactor design. CFD study is used for that, कि कैसे हम चेंज करें. if there's something happening here, then how do I change the design so that my flow pattern is what I want. Similarly for CSTR also. अगर CSTR लिया हमने और हमारा फ्लो पैटर्न बराबर नहीं आया, स्ट्रीमलाइन बराबर नहीं आया कॉन्सेंट्रेशन वगैरह का, राइट? यहाँ पर CA नॉट है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल रहेगा जो रहेगा वो क्या ड्रॉ करेंगे. आई एम जस्ट ड्रॉइंग रैंडमली, एक्चुअली बता रहा हूँ आपको, बट यू कैन सी हाउ द कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्लोज आर चेंजिंग. एंड इफ इट इज नॉट मिक्सिंग प्रॉपरली, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म चाहिए पूरे, इसमें CA चाहिए, राइट? यू वांट CA एवरीवेयर, CA, सो इट शुड बी सेम कॉन्सेंट्रेशन. नहीं आया तो देन यू कैन सी कि क्या ये इम्पेलर जो है, इम्पेलर कैसे चेंज करने का, व्हाट टाइप ऑफ इम्पेलर टू यूज सो दैट वी गेट यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन. So those kind of studies can be done in CFD now. ठीक है? यस सर. So then we are going to look at RTD studies, research and distribution, कैसे करते हैं. So RTD and pulse input. There are two ways of doing RTD studies. One is pulse input, second one is step input. E is called exit edge distribution or resistance time distribution. It's called the symbol E. Units are time inverse, second inverse or minutes inverse. So age is, if I talk about age, is time spent in the vessel or reactor. Right? So we are going to look at age, and by default, if I integrate all the ages, if I take the reactor, any reactor, and I find that इसका एज कुछ है, यहाँ पर कुछ है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो जितना भी है, जितना फ्लो रेट आ रहा है, ये नॉट और जितना ये आ रहा है, तो सबका मिला के यू शुड हैव टू, दैट मीन्स 100% पूरा हुआ एज होना चाहिए, जितना भी एज रहेगा, राइट? किसी का एज 1 मिनट रहेगा, किसी का 2 मिनट्स रहेगा, 1 मिनट 2 मिनट्स, तो फ्रैक्शन रहेगा, राइट? सो 10% इज 1 मिनट, 10% is 2 minutes. If I add all these things, it should add up to 100%. That's what it means. So all the age distribution जितना भी रहेगा, it may be bypass करके गया तो it could be few seconds. अगर
stagnant pocket में रहेगा तो it may be few minutes. So whatever the age, if I integrate from 0 to infinity, जितना भी रहेगा, because वो long tail रहता है, you'll see that. तो जितना भी है, it should be adding up to 100%. 1 means 100%. So area under the E versus T time, if you plot E versus T, it should be equal to 1, that is 100%. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. So this is called normalizing the age, exit age or RTD. So जितना भी age रहेगा, it should add up to 100%. So if you see this is actually IH, exit age distribution, E versus time. This time t equal to 0, and this is infinity यहाँ पर suppose. तो क्या होता है इनिशियली जो बाईपास होके आ गया उसका टाइम कम रहेगा यहाँ पर, राइट? ये जो है दिस इज ऑल बाईपास, फटाफट आया निकल गया बाहर, राइट? देन देयर विल बी सम मॉलिक्यूल व्हिच विल स्पेंड मोर टाइम दिस इज योर मैक्सिमम, एंड देन इट रिड्यूसेस. और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे, यहाँ पर ऐसा बताया, बट इट कुड बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. कर्व कुड बी लाइक दिस ऑल्सो, right? So it depends on the actual experiment, actual data. So that means if I look at let me see. Okay. So if I look at this one, 0 to T1, area under the curve between 0 to T1, the fraction of exit stream with age less than T1, right? Maximum ये T1 है, right? ये जितना भी है यहाँ से इतना area under the curve is कितना fraction of the reactor volume is spending age less than T1, right? और इसके बाद का देखेंगे T1 से infinity का, तो fraction of exit stream with age older than T1, more than T1. So this is less than T1, less than T2. और अगर ये लिया मैंने, suppose I take this one between T1 and T2, then it is how much fraction spends time between T1 and T2. समझा गया? ठीक है? सर ये हमने T1 minus T2 क्यों लिया है सर? Just tell you Middle कि I want to find out कि between T1 minus T1 and T2, suppose this is T2 is 2 minutes, this is 3 minutes. So how much fraction of the liquid spends between 2 to 3 minutes? So I can find out that also. हेलो सर. Yeah. सर ई के वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम? बाद में देखेंगे. First understand the concept, then we'll find out how to calculate E and all. First understand the concept. What is exit age distribution? What is age? How do you find out how much fraction spends less than T1? How much fraction spends greater than T1? How much fraction spends between T1 and T2? ये सब concept understand करो. बाद में actual देखेंगे हम कैसे करने का. ठीक है? इतना clear है क्या? यस सर. So can I continue for more? थोड़ा टाइम और स्पेंड कर सकते हैं आज? because आपका कुछ नहीं है अभी, राइट? इज इट ओके कि स्पेंड से हाफ एन आवर मोर? और दूसरा मैं सर अभी 1 बजे से Why not? पीआईसी क्या है अभी? पीआईसी के ओरल से सर. पीएससी का ओरल है? हाँ, और सेमिनार का प्रेजेंटेशन भी है. हाफ लड़कों का प्रेजेंटेशन और हाफ बैच का ओरल, ऐसा. ठीक है, ओके, देन वी हैव टू स्टॉप हियर. ठीक है, तो सी आई नीड सम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सेकंड 2 तारीख तक है ना लेक्चर आपके, बराबर है? सेकंड इज सपोज टू बी द टर्म एंड. तो आई वाज थिंकिंग कल एक लेक्चर ले सकते हैं क्या? ये तो खत्म नहीं होगा यूनिट 6. यस, नो, सर चलेगा. चलेगा. एक आदमी को बोलने से क्या होता है? बाकी लोग ने क्या क्या चलेगा सर. चलेगा. नहीं है क्या? जीएस है क्या? हाँ joint? सर. चलेगा कल? हाँ सर चले.
नहीं, क्योंकि आपका कुछ 10 बजे कुछ है ना, कुछ एक्सपर्ट लेक्चर या कुछ गेस्ट लेक्चर है ना कल 10 बजे। कितने बजे रखने का है? क्योंकि मैं देख रहा था कहीं तो आपका कल शायद कुछ है 10 बजे, समथिंग एज देयर। वो अटेंड करने वाले हो क्या आप? स्कोप अच्छा ऑफ उसके पाइपिंग, बाद स्कोप ऑफ पाइपिंग इंजीनियरिंग 10 बजे है। कितने बजे रखने का फिर? सर 10:45 9:45। नहीं नहीं, 10 बजे है आपका वो पाइपिंग का, अगर अटेंड करने वाले हो तो। नहीं अटेंड करने वाले तो आई कैन टेक लेक्चर, 10 बजे रख सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं मेरे को। यू टेल मी शिवानी। ओके। अच्छा, दूसरा आपका जो आज टेस्ट है वो, उसके लिए आपको टाइम रहेगा क्या? यूनिट 5 का टेस्ट वो कब चाहिए आपको? सर एमसीक्यू है क्या सर, थ्योरी लेने वाले? एमसीक्यू, एमसीक्यू अभी एमसीक्यू ही है। 15 मिनट्स लगेगा आपको। सर 5 बजे लेते हैं ना? हाँ, आप बताओ मेरे को, 5 बजे 6 बजे मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ओवरऑल है ना, बोल रहे हैं आप। हाँ सर, उसको कितना टाइम लगता है क्या वहाँ? हाँ वही तो कितने बजे रखें? 6 बजे रखें? चलेगा सर। सर 5 बजे ले लो। बोला 5 बजे रखता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आप आपका देखो टाइम, आई कैन फिक्स एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। 5 बजे तो 5 बजे रखता हूँ मैं। शिवानी, यू टेल मी दैट, कंफर्म करके। हाँ सर। हाँ ओके, सर। कल सवेरे का भी टाइम बता दूँ कंफर्म करके। हाँ। ओके ठीक है, स्टॉप हियर नाउ।